think? Welcome back to Triple X Energy Drink CCL. Now, celebrities, cricket and glamour is what really makes CCL. So we have the amalgamation right here. Joining me, we have Mr. Sudhir Hasuja, Chairman, Carbon Mobiles. Now, he's the one who's bringing the right ring to this match, I suppose. And we also have actresses Gauri and Samiksha, known very well in the South Indian films. Lovely to have you here. One guess, you're all cricket fans, aren't you? Yeah, we are big fans. So let's talk about your association, Carbon Mobiles, with CCL. Well, I've been associated with CCL right from inception. Carbon has been supporting cricket right from beginning. I started my brand with the IPL, and that's where we got the growth. I'm a passionate cricketer. That's why I choose cricket as the media. So CCL gives us a good mileage, and we have been associated with it. And ladies, apart from the glamour, do you also bring some fan following for cricket here? Yeah, Karnataka Bulldozer is my favorite team personally, so I'm here to support them. And before that, we saw the match with the Chennai, and they did really well. I'm so happy for my Chennai Warriors. Now, I know that this lady has been here all day, screaming and shouting and hooting and rooting for the teams that are here. So that's a big part of the bag. Luck, yeah, lady luck to them. Inspiration comes glamorously. Here we move on to Gauri. Gauri, how has the day been for you so far, and what are you expecting today? It's been very good so far, and I am expecting a win for Karnataka Bulldozers. I am here to support them, and I have been working in all the South languages. So I am basically up for any of the South languages. Did it get confusing then who to support? No, not really. We have friends everywhere, so I really don't mind. One of them can win. But today, as of now, I'm here to support the Karnataka Bulldozers. How do you choose who to support, sir? You're here sort of supporting everybody, aren't you? Of course, we as a sponsor, we wish all the team well. But today, the way Karnataka is playing, looks like, and they were last year winners also, looks like the match is going Karnataka way. And how's the day been for you otherwise? You've been at the stadium as well all day. No, I just came. I was not in the stadium. I just walked in here. That's definitely only for the Karnataka support. There, he said it. Being based in Karnataka, naturally, I'll be supporting from the heart Karnataka team. But otherwise, we support everyone. I think they're just dripping with favoritism here, if I may say so. And look at the crowd cheering again. That's one noisy stadium. Amazing crowd, yeah. They're loving it here. What do you have to say about the energy here and the way people are feeding off it? This is something we've been used to for the past few years. When we are shooting outside, we see the crowd scream. So today, when all the celebrities are here, they better be here. That's the treatment you stars get here, huh? All right, nice crowd adulation here. Adulation goes out to the teams as well. Over to the commentary box now. शुक्रिया सुप्रीत। इस बीच राजीव ने बहुत अच्छे अंदाज में अपना खाता भी खोला और साथ साथ कर्नाटका बुलडोजर्स के 100 रन भी पूरे किए। रन रेट अभी भी 10 के करीब और ऐसे बड़े शॉट्स की वजह से ही ये हो पाया है। क्लीन हिटिंग। एक और इसे की कोई जरूरत नहीं, ये शायद स्टेडियम के बहुत दूर जाके गिरे और थोड़ी दूरी मिल जाती अतुल तो बाहर के जितने भी कार पार्क्स है वहां पे गाड़ियों के लिए खतरा बन सकता था। बिल्कुल स्लॉट में गेंद है और बिल्कुल गोल्फ की तरह खड़े हैं टी ऑफ करने के लिए। बहुत ही क्लीन शॉट, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम कह रहे थे कि 10 रन प्रति ओवर की जो गति है, चाहे विकेट्स गिर रही है पर वो उस गति को कम नहीं कर पा रहे बंगाल टाइगर्स। और इस ओवर में ही उदय 2 वाइड्स कर चुके हैं, यानी 2 और गेंदें करनी पड़ेंगी। अब 3 और, क्योंकि एक और वाइड बहुत एक्सपेंसिव ओवर साबित होता हुआ। 15 रन आ चुके हैं और 2 गेंदें अभी भी शेष। जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, इनकी मुस्कान और भी बड़ी होती जाएगी। राजीव, जिन्होंने अब तक सिर्फ 6s में ही डील किया है, अपना पहला रन लेते हुए, और कर्नाटका पहुंच चुके हैं 108
ये तो 200 की तरफ अग्रसर है। अभी काफी बल्लेबाजी आनी बची है और अभी प्यास लग गई है इनके। अभी ये भाग नहीं रहे हैं। अभी रनर लिया हुआ है इन्होंने और छक्के मार के ही सूख गया है। ये पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। 11 के बाद 109 पे 3। ग्यारह ओवर्स के बाद 109 पे 3 कर्नाटका बुलडोजर्स। उन्होंने ही टॉस जीता था, उन्होंने ही फैसला किया था कि सबसे पहले बल्लेबाजी करेंगे और उसका भरपूर आनंद उठाते हुए। ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए @CCL और जानिए सारा कुछ इस ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज के बारे में। यूसुफ का ये दूसरा ओवर और स्पिन ने बहुत अच्छा काम किया है। यूसुफ की जो गेंदबाजी रही है वो बहुत बढ़िया। 7 गेंदों में 2 डॉट बॉल, 1 विकेट भी, सिर्फ 7 रन। और वहीं बीच में अचानक उदय के रूप में एक मीडियम पेसर का इस्तेमाल किया कप्तान जिशु ने। राजीव का भी बहुत अच्छा करियर है CCL में। एवरेज देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए। और अब तो पानी भी पी लिया इन्होंने। 25 मैचेस में 872 रन। ओह, अब बाल बचे रनर। स्टैंड एंड डिलीवर स्टाइल है इनका बस। और मन बना लिया कि अब सेट है, आगे उठने वाले नहीं है। ये उदय के ओवर में 2 छक्के। इनका सर्वाधिक स्कोर हमने अभी देखा 154 नाबाद। और याद रखिए ये वही मैदान है जहां पे एक बार क्रिस गेल ने IPL में 175 मारे थे। हालांकि उतने ओवर्स यहां पे नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी बड़ा स्कोर तो बना ही सकते हैं। एक कोई जाओ डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि बंगाल टाइटंस बहुत बुरी तरह ब्लीड कर रहे हैं यहाँ पे रन्स। और टाइमिंग देखिए कितनी खूबसूरत है शॉट में। स्पिनर के खिलाफ स्क्वायर ड्राइव लगाया इन्होंने और 2 बाउंसेस के बाद बॉल क्रॉस कर गया। देखिए विकेट में कितना पेस और बिल्कुल स्लाइस किया और 2 बाउंसेस और बाउंड्री। बहुत आक्रामक गेंदबाजी चल रही है या बल्लेबाजी कहें। एक तरफ ध्रुव अब अपने 4th गियर में आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजीव। ऐसे उन्होंने शुरुआत की है जैसे बिल्कुल शुरुआत से ही 4थे या 5वें गियर से शुरू की हो। 6 गेंदों पे 14 राजीव नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे, और स्ट्राइकर्स एंड पे ध्रुव बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 33। एक और शॉट, लेकिन इस बार फील्डर वहां पे तैनात है। 1 ही रन मिलना चाहिए कप्तान जिशु, लेकिन उससे पहले 2 रन ले लेंगे बड़ी आसानी से। यह भी एक एक्सपेंसिव ओवर साबित होता हुआ। और जब इतनी अच्छी टीम खेल रही हो तो मुझे लगता है हर बार सोचते हैं कि हम ऐसा एक बेंचमार्क बनाएं, और जानते हैं कि अभी इतने खिलाड़ी बचे हैं कि इसी तरह की बल्लेबाजी चलती रही इसी गियर में तो लगभग 225 रन भी बन सकते हैं। एक चीज जरूर है, ये बहुत अच्छी सतह है बल्लेबाजी के लिए, और बंगाल टाइगर्स को अपना हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि जितने भी रन बने उससे 1 ही रन ज्यादा तो हमें बनाना है। लेकिन फिलहाल इस ओवर में 9 रन दे चुके हैं यूसुफ, और फिर से राजीव स्ट्राइक पर। इरादे बिल्कुल साफ थे, एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन 1 ही रन यहां पे ले पाएंगे। 119 पे 3।
ये देखिए कितने खुश हैं चेहरे। बड़े थोड़े से वरिड चेहरे हैं बंगाल टाइगर्स के सपोर्टर्स के। चिंता की लकीरें साफ पड़ी जा सकती हैं माथे पर। बढ़िया गेंदबाजी। सैंडी बड़े मजे हुए ऑलराउंडर हैं। एक ओवर के में 7 रन दिए थे, दूसरा ओवर कर रहे हैं और अच्छा खींच के डालते हैं और वॉच करते हैं और डिलीवर करते हैं लेट बॉल को। उनके डील डॉल पे मत डालिए जाइए, बहुत एथलेटिक हैं। इसको कैच करने की कोई जरूरत नहीं। ये इसके तो 8 रन बनने चाहिए और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है क्रिकेट में देवान के जब डिस्टेंस के हिसाब से आपको रन मिलेंगे। ओहो टी ऑफ कर दिया, लंबा अट्ठा। उत्साह देखिए, जुनून देखिए। जानते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स की ये एक बुलडोजिंग इनिंग्स और बेहतरीन पार्टनरशिप। जिस तरह के बल्लेबाज हैं ये स्टेप आउट नहीं कर रहे हो, वो इंतजार कर रहे हैं अपने एरिया का। उनका पाला है, उनको अंदाजा है कि इसमें आ गई तो आई विल गो थ्रू विद द स्विंग। बैट देखिए कितना मोटा है। एक चीज तो है, सारी टीम्स को वार्म अप करते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सारे खिलाड़ी बहुत सीरियस हैं इस सीसीएल के बारे में, अपने किट के बारे में, जो बहुत एक अच्छा संकेत है। हालांकि पेशेवराना खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सीरियसली लेते हैं अपने क्रिकेट को। चालाकी से की है, तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेटिंग सेंस है। खिलाड़ी देखिए, उनको पता है कि किस स्लॉट में कहां डालनी है। एक वो गलती कर बैठे हैं राजीव के खिलाफ इस ओवर में, और फिर भी अब दूसरे ओवर आखिरी गेंद में है और 6 रन खाने के बावजूद भी सिर्फ 14 रन दिए हैं सैंडी ने। तो एक तरफ से जब 11 रन की औसत से रन आ रहे हो और एक गेंदबाज 7 रन की औसत से भी दे तो इकोनॉमिकल लगता है। तेरह ओवर्स के बाद 127 पे 3। तो 13 ओवर हो चुके, 127 पे 3 है और ये है बैटिंग कार्ड। मतलब सभी का योगदान है। दर्शन आज चूक गए, उनको भी लग रहा होगा कि कहां गलती कर दी मैंने। प्रदीप ने जो बेस सेट किया उसका फायदा उठाया ध्रुव और राजीव ने, और अभी महेश, सुदीप, जबरदस्त बल्लेबाजी बची है। 6 गेंदबाज इस्तेमाल में लाए गए हैं और औसत सबकी देखिए। इकोनॉमी रेट जो है एक कहानी बयां करता है। संदीप सैंडी 7.5 की औसत से सबसे बेहतरीन नजर आ रहे हैं वहां पे। ये एक अच्छी गेंद, नपी तुली गेंद। देवराज ने भी 1 या 2 ओवर काफी किफायती किए हैं, बल्कि पहला ओवर बहुत अच्छा था उनका, सिर्फ 3 रन दिए थे और उसमें एक विकेट भी लिया था और वो था दर्शन का विकेट। लेकिन उसके बाद दूसरी ओवर में उनकी जम के पिटाई की थी, खासकर राहुल ने। यहां पे ध्रुव का फिर से आक्रामक शॉट, कम से कम 2 रन तो मिलेंगे ही।
बिग ब्रदर फाउंडेशन हर एक रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करता हुआ, बहुत बेहतरीन पहल। और जिस तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स इस पारी को अग्रसर कर रहे हैं, शायद 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बन जाएंगे इसी इनिंग्स के बाद। कमाल की गेंद। जैसे ही आप कहते हैं कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो एक वापसी होती है, और फिर से बंगाल टाइगर्स ने वही कर दिखाया। हालांकि रन रेट को नीचे नहीं ला पा रहे, पर बीच बीच में डेंट जरूर दे रहे हैं। और बड़ा विकेट है, क्रॉस द लाइन खेलने चले गए थे ध्रुव, और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ये होता है फायदा। देवराज के लिए उनका दूसरा विकेट, और ध्रुव इफेक्टिवली इस मैच में दूसरी बार आउट हुए, क्योंकि एक बार एलबीडब्ल्यू हुए थे एक पर, लेकिन उसे रिवर्स किया गया था एक रेफरल के बाद। इस बार आउट हुए हैं, उन्होंने बनाए 39 रन। कर्नाटका बुलडोजर्स 129 4 विकेट पे। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ, क्योंकि कप्तान सुदीप स्वयं बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। अब कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुदीप किचा कप्तानी लाजवाब करते हैं, और विकेट कीपिंग में जो जज्बा दिखाते हैं। हालांकि बल्लेबाजी में इतने रंग नहीं दिखाई, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। हाईएस्ट स्कोर 47 का है इनका। 24 मैचेस देखिए, सबसे प्रोलिफिक खिलाड़ी रहे हैं अब तक सीसीएल में। इस शॉट को आप कितने नंबर देंगे? देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 रन तो वैसे ही मिल चुके हैं। फिर से स्टैंड एंड डिलीवर राजीव से। कमाल की हिटिंग है ये, मानना पड़ेगा। बेहतरीन शॉट, चौथा छक्का उन्होंने मारा है। सिर्फ 11 गेंदें खेली हैं, और 11 गेंदों में से 4 को तो इन्होंने बिल्कुल क्राउड में भेज दिया है। कर्नाटका बुलडोजर्स के सपोर्टर्स, फैंस, ओनर्स सब बहुत बहुत उत्साहित। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट पे नजर डालिएगा, 254.5, यानी 100 गेंदों पर 250 रन। अगर ये 20वें ओवर तक खेलें तो बहुत बड़ा स्कोर बन सकता है। यहां पे गेंद फिलहाल वापस नहीं मिली है, इतना दूर भेजा है उसे। बहुत ज्यादा वक्त, और बॉल दे नहीं रहे हैं, वो वहीं खेल रहे हैं उसके साथ। सोचिए अगर सुदीप ने मारी होती तो अब तक टुकड़े हो चुके होते इस बॉल के। चारों तरफ मुस्कान, क्योंकि जिस तरीके से आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2015 की दिवाली बहुत जल्दी मनाना चाहते हैं राजीव। बिल्कुल क्राउड में गई, और उसके बाद आने में काफी वक्त लगा, क्योंकि वहां पे किसी ने शायद कैच पकड़ी हो और उन्हें ऐसा लगा हो कि अविश्वसनीय कैच पकड़ा है। शत प्रतिशत रन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, यानी पीछे एक भी शॉट नहीं मारा, यानी सब कुछ बल्ले से बीचों बीच।
देवराज के फिगर इस ओवर में काफी खराब हुए। एक और चौका, 14 ओवर के बाद 140 में 4। लगभग पहले ही ओवर से 10 रन प्रति ओवर की औसत से खेलती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स। बीच में एक ब्लिप आप देख सकते हैं जब 2 विकेट्स गिरे थे, लेकिन उसके अलावा हमेशा ऊपर चढ़ता हुआ उनका वर्म। मुस्कुराएगी भी क्यों ना, क्योंकि वो कर्नाटका बुलडोजर्स के कैंप में है। यहां पे एक और बहुत डेलिकेट स्ट्रोक, एक और रन की गति में कोई पे नहीं मिलता हुआ। 150 15 ओवर के आसपास बना लेना तारीफ करनी होगी। अपनी कैपेसिटी का, अपनी कैपेबिलिटी का पूरा अंदाजा है इस टीम को, खासकर हर एक प्लेयर को। और क्या शॉट है, डेलिकेट। जानते हैं कि राजीव को स्ट्रोक टू स्ट्रोक मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपनी क्लास दिखाई सुदीप ने। ये करीबी मामला आप दिया गया है, क्योंकि फुल बॉल और बिल्कुल स्टंप्स के सामने आ गए थे सुदीप, लेकिन उन्होंने रेफरल यहां पे मांगा है। ये रेफरेंस का बड़ा मसला है, कितने रेफरल है, कितने इस्तेमाल में लाए गए हैं, कुछ अंदाजा नहीं है। नो बॉल तो नहीं है और विकेट के बीचों बीच इन स्विंग लगा है, अक्रॉस खेल गए, बॉल विकेट में पिच हुआ। ओ बिल्कुल सामने, मुझे लगता है कि बॉल मिडिल लेग पे जाके लगती जरूर। चिन्नास्वामी स्टेडियम के जितने भी दर्शक हैं वो थोड़े मायूस जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे बंगाल टाइगर्स के लिए एक बड़ा विकेट जरूर, क्योंकि सुदीप वो भी अच्छे फॉर्म में आ रहे थे, उनके विकेट का पतन और पहला विकेट मिलता हुआ उदय को। सुदीप आउट हुए 5 बनाकर, कर्नाटका बुलडोजर्स 144 पे 5। कप्तान सुदीप आउट हो चुके हैं, यानी क्रीज पे अब आए हैं जयराम कार्तिक। उनका भी सीसीएल करियर बहुत बेहतरीन, एवरेज देखिए 43.5, हाईएस्ट स्कोर 54 नाबाद केरला स्ट्राइकर्स के खिलाफ। यानी जितने भी खिलाड़ी हैं इस पूरे लाइनअप में, सब में बहुत अच्छी बैटिंग की काबिलियत है। इसी वजह से सबसे अच्छी कंसिस्टेंट टीम रही है सीसीएल के इतिहास में। ओ विशफील्ड, वहां पे विकेट काफी तेज है, वहां पे प्रैक्टिस पिचेस है और खास ख्याल रखना पड़ता है फील्डिंग का। वहां पे बॉल एक तो तेज हो जाती है जैसे ही उस कोने में शॉट खेला जाता है, तो ये बढ़िया देखिए सीम से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये इसकी जरूरत थी। इनके पहले गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई? नया गेंद को अगर उदय को दिया जाता तो शायद कुछ अलग ही कहानी होती।
एक ही उम्मीद है यहां पे बंगाल टाइगर्स के लिए, वाइड का इशारा होगा कि विकेट्स लेते रहें। अगर विकेट जाते रहेंगे तो हो सकता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स उतने शायद ना बनाए, लेकिन अगर राजीव रहें अतुल तो वो 213 क्या, इससे काफी ज्यादा भी बन सकते हैं। 12 प्रति ओवर उसकी जरूरत है अगर 213 तक पहुंचना हो, जो कि बहुत विशाल स्कोर होगा इस मैदान पे, खासकर कर्नाटका बुलडोजर्स के बॉलिंग अटैक के साथ। समझदारी की स्ट्राइक दिया राजीव को, क्योंकि राजीव जिस फॉर्म में है उसमें उनको ज्यादा देर स्ट्राइक से परे रखना भी टीम के लिए नुकसानदायक है। जब बल्लेबाज फ्लो में हो तो उसका मोमेंटम ब्रेक कर दिया जाता है, इसीलिए स्लेजिंग या गेम्समैनशिप जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। एक और करारा स्ट्रोक और बिल्कुल सीधे अपने समर्थकों के बीच से भेजा। ये उनके इनिंग्स का 5वां छक्का कुल मिला के। स्लो रन डालने की कोशिश थी उदय की। मुझे लगता है कि जब एक खिलाड़ी ऐसे खेल रहा हो तो गेंदबाज भी जो है परेशान होके कुछ अलग सा करने जाता है और उसमें ये दिक्कत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बैक टू द बेसिक्स, आप बेसिक्स पे ध्यान दें। आसानी से 1 रन तो ले ही लेंगे, फील्डर बहुत जल्दी इस पे आए, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन फिर भी 15 रन इस ओवर में। 15 ओवर के बाद 155 पे 5। कैसे बदल रहे हैं ओवर का विकेट मैं जो सारे घूम रहे मेले में यार। और देखिए गेंदबाजी के एनालिसिस, 2 विकेट जरूर लिए देवराज ने, पर लगभग 12 रन प्रति ओवर उनके जा रहे हैं। सैंडी के 2 ओवर बचे हैं, उदय के 2 ओवर बचे हैं। उदय ने भी अच्छी गेंदबाजी की पर महंगे साबित हो गए उसके बाद। राजीव 14 गेंदों में 39 रन, 278 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 छक्के 1 चौका।